وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ڈھنگے طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی جانب بڑھا، گلا نیچے کو ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ اس کو بیڈ کے کنارے سے تھوڑا آگے کرنے لگا۔ اس قتل کے بدلے اپنے مرحوم چاچو کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھونٹنے لگے۔ وہ خود پر ضبط کرتا پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بے نیاز سو رہی تھی۔ توبہ ہے اس لڑکی کو، تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کر دے۔ اس کی قمیص سے پیٹ کو نظر آتا دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا اپنے بال تولیے سے خشک کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو اس کے سنہرے بالوں کی لٹ اس کے دلکش چہرے کا طواف کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ضامن کے دل میں حشر سا برپا ہوا۔ وہ 15 سال کی ہونے کے باوجود مکمل حسن رکھتی تھی، کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتا تھا، وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ وہ بال خشک کر کے اس کی جانب آیا اور اس کے پاس جھک کر اس کو سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اس کو چھوا ہی تھا ضامن نے کہ وہ کرنٹ کھا کے بیدار ہوئی۔ آپ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ ضامن کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا ابھی نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر۔ وہ چبا چبا کے بولا۔ وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 15 سال بڑے اس خوبصورت سے شخص کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں ہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ گیا۔ میں ونی ہو کر آئی ہوں، پھر آپ مجھ پر ظلم کریں گے، زبردستی حق لیں گے مجھ سے؟ وہ اچانک درد بھری آواز میں بولتی اس کو چونکا گئی۔ یہ سب کس نے کہا آپ سے؟ وہ بھویں اچکا کے پوچھنے لگا۔ بھلا وہ اس 15 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جس کو شادی کا مطلب بھی ابھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ وہ محض بدلے کی آگ میں کیوں اس کو اپنی وحشت کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں ایسے ہی کہہ رہی تھیں کہ جو ونی ہو کے جاتی ہے اس کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے۔ وہ کہتی ہوئی خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ضامن کا تجسس بڑھا اور وہ سوال کرنے لگا، اور کیا کہتی تھی؟ جو اس کو حیران کر رہی تھی۔ سجے سمرے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھڑ گئی تھی، اور کہتی تھی کہ آپ ہمت سے کام لینا، ان سب میں بہت درد ہوتا ہے۔ وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ضامن کو جھٹکا لگا۔ جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، وہ تو خود بنی کی رسم کے خلاف تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور اور بے بس ہو گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک بولا تو عمل نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں 8 کلاس میں پڑھتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سن کر ضامن نے ایک دم سے اس کے بازو کو کھینچ کے مزید اسے اپنی جانب کیا۔ عمل کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میرے قریب ہو کے بیٹھو تاکہ آپ کو مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے سمجھنے میں مدد ملے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ عمل کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، ورنہ وہ سمجھی تھی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا ہے۔ آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے نا، نہ ہی اپنا حق لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی ضامن کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمل کا ننھا سا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پر کوئی ظلم اور زبردستی نہیں کروں گا، وہ محبت سے بولتا اس کو حیران کر گیا۔ سچ میں؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکالتے ہوئے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی۔ ضامن کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، کہتے ساتھ اس نے عمل کی روشن پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عمل، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کو ریلیکس کرنے لگا جو آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ ضامن کی بات پر اس کا جسم کانپنا بند ہوا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا، تو وہ اپنی جگہ پر پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ عمل، یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ وہ اس کے عروسی جوڑے کی جانب دیکھ کے بولا، تو عمل نے آنکھیں کھولیں۔ کیے ہیں لیکن میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں تھا، اب کیا کروں پھر؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور اس میں سے ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس کو تھما دی۔ آج کی رات گزارا کر لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اس بات پر سر ہلاتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔
अब आगे फिर वो इम्तिहान में फंस गई थी। बाल कमीज की जिप में अटक के रह गए थे जो निकल ही नहीं रहे थे। वो बारहा कोशिशें कर कर के थक चुकी थी। उसको ज्यादा वक्त लगता देख कर जामिन भी परेशान हो गया। अमल, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी तो वो बेबसी से लब काटती दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दें, बाल इसमें अटक गए हैं। वो अपनी कमर उसकी जानिब करते उसके जज्बों में ईंधन लगा गई। शफाफ कमर पर ब्लैक स्टेप्स उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थीं। जामिन ने बामुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से आज़ाद किया तो जिप खुल के नीचे को आ गई। अमल ने बामुश्किल अपनी कामदारी कुर्ती मुट्ठी में दबोच रखी, वरना वो ढलक जाती। जामिन का दिल धड़कने लगा। हो गया है, आप कर लो चेंज, वो कहते हुए बेड की जानिब बढ़ गया और वो चेंज करके कुछ देर बाद निकल आई। ये लड़की आज रात मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी, वो उसको अपने ट्राउजर शर्ट में देखकर मसहूर होते हुए बोला था, जो सरापा हुस्न लग रही थी। उसका अपना मजरू जज्बात पे बंद बांधना मुश्किल हो गया था, जबकि वो नफ्स का गुलाम नहीं था। अमल खामोशी से सिमट कर उसके पहलू में लेट गई तो उसने भी लाइट ऑफ करके आंखों पे बाजू रख लिया। ये रात उसके लिए इंतहाई मुश्किल थी। वो सुबह जल्दी उठा था, वॉशरूम में जाकर ताज़ा दम हुआ। बाहर निकलते ही अमल की तरफ देखा जो इस वक्त गहरी नींद में थी। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। अमल, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ निहायत ही नरम थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। अमल आंखें मलते हुए उठ बैठी और पलकें झपकाते हुए जामिन को देखने लगी। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वो बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो ताज़ा दम होके निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ी हुई थी। लंबे घने बाल उलझ के उसके कंधों और कमर पे बिखरे थे। वो बेबस नजरों से जामिन को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा था। जामिन ने मुस्कुराकर उसको बैठने का इशारा किया। आओ मैं ठीक कर देता हूँ। अमल ने झिझकते हुए कुर्सी पे बैठते हुए उसकी तरफ देखा। जामिन ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को खुश्क किया। उसके हाथ नरम और महारत से चल रहे थे। फिर वो आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं अमल, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा था। अमल ने सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जामिन ने बड़ी एहतियात से बालों की लट को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट हो। वो पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। अमल ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू जामिन, वो मुस्कुरा के बोली। कोई बात नहीं, आगे खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं मदद कर दूंगा। जामिन ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों ताज़ा दम होके कमरे से बाहर निकले। अमल के चेहरे पे झिझक नुमाया थी। उसके कदम जामिन के साथ साथ चलने में लरज रहे थे। वो हर कदम पर जामिन की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और एतमाद की मुंतजिर हो। जामिन ने उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके खौफ को कुछ हद तक कम कर गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, बीजान की नजरें अमल पे जा ठहरी। उनकी पेशानी पे बल पड़ गए थे। ये क्या तमाशा है जामिन? इस लड़की को खाने की मेज पे क्यों लेकर आए हो? जामिन ने अमल का हाथ मजबूती से थाम लिया और अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा हो गया। बीजान, ये अब से मेरी बीवी है और जहाँ मैं हूँ ये भी वहीं होगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी, उसने वजाहत की। बीजान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मत भूलो जामिन की लड़की तुम्हारे चचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें जामिन और बीजान पे जम गई थीं। अमल के चेहरे का रंग उड़ा और उसके हाथ लरसने लगे। जामिन ने गहरी सांस ली और बीजान को देखा। ये कातिल की बेटी है बीजान, मगर ये खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। जामिन की आवाज़ में ऐसा एतमाद और सख्ती थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा रह गया, जैसे किसी ने उन पर सख्तातारी कर दिया हो। सबकी आंखें जामिन पे जम गई। बीजान की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि जामिन उनकी बात का इस तरह से जवाब दे सकता है। पास खड़ी अमल खौफजदा हो गई थी। तुम परेशान मत हो अमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जामिन ने उसको इत्मीनान दिलाया।
लेकिन बहस का माहौल इस कदर बोझल हो चुका था कि अमल का खड़े रहना मुहाल हो गया। वो कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे छलनी कर रही थीं। आओ ऊपर चलते हैं, वो उसकी हालत देखते हुए बोला। बीजान ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जामिन उनकी तरफ देखे बगैर अमल को आराम से अपने साथ ले गया। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। जामिन ने उसे कमरे में लाके बेड पे बिठाया। उन सब बातें सुनने की तुम्हें उन सब की बातें सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सबको मैं देख लूँगा। जामिन ने कहा। अमल ने पहली बार उसकी आंखों में एतमाद के साथ देखा और धीरे से सर हिला दिया। जामिन ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ किए। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, फिर दोनों नाश्ता करते हैं। ये कहते ही वो उठ के चला गया। वो अमल को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और वो अपने कमरे में अकेली थी। सुबह की तल्ख वाकयात के बाद उसका दिल बेहद बोझल हो चुका था, मगर जामिन के तसल्ली बख्श अल्फाज ने उसे कुछ सुकून दिया था। वो थकन के मारे दोबारा बिस्तर पे लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर हुई थी कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। बीजान ने आपको नीचे बुलाया है, मुलाजमा ने अदब से कहा। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वो सामने खड़ी मुलाजमा को देखने लगी, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में वसवसे उठने लगे थे। वो धीरे धीरे नीचे आई। कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, बीजान की तेज नजरें उस पर गड़ गईं। याद रखो, जामिन की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए, तो सारे काम तुम्हें करने होंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई? अमल ने बामुश्किल अपनी हिम्मत जमा की और सर झुकाकर हल्के से सर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। बीजान ने इशारा किया। अच्छा, आप जाकर मुलाजमा के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। उसको एक और धचका लगा। उसे तो इन कामों की का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सर झुकाकर भी जान के हुक्म पे चल पड़ी। मुलाजमा उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहाँ कपड़ों का ढेर पड़ा था। कपड़े देखकर अमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब धोना है बीबी जी, किसी की मदद नहीं लेना वरना बीजान बुरा पेश आएंगी। और ये कहकर वो बाहर चली गई। अमल ने जिस बेबसी से कपड़ों को देखा, उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए लरस रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर बाद वो थकन से चूर हो गई। उसके हाथ सुर्ख हो गए, आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो हार मानने के बजाय काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई आजमाइश था। वो दिल ही दिल में सब्र करते कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे। जब जामिन ऑफिस से हवेली वापस आया था, तो जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। अमल बेड पे बैठी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि जामिन का दिल तड़प उठा। वो तेजी से उसके करीब आया। अमल, क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? अमल ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी लरसती हुई आवाज और नम आंखें उसे मजीद बेबस जाहिर कर रही थी। वो एकदम जामिन के गले लग गई और सिसकियां लेते हुए बोली। वो उसके गले लगने पर बौखला गया। आज मुझसे बीजान ने बहुत सारे कपड़े धुलवाए हैं। देखें, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द कर रही है। ये सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठने लगी, मगर वो अमल के सामने खुद पर काबू पा गया। उसने अमल को अपने बाजुओं में भर लिया। चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबा देता हूँ, वो नरमी से बोला। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने फौरन इनकार किया था। चुपचाप लेट जाओ अमल, ये मेरा हुक्म है, वो थोड़ी सी सख्ती से बोला। अमल बेबस होके लेट गई। जामिन ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबाना शुरू की। उसके हाथ इतनी नरमी से हरकत कर रहे थे। उसने उसके कंधे, बाजू और नन्हे जिस्म के हर हिस्से को इस तरह दबाकर सुकून दिया कि अमल के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून के आसार जाहिर होने लगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो शर्म से सुर्ख पड़ते हुए बोली थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो अमल, तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। उसकी बात पर अमल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। जामिन ने उसके चेहरे को प्यार से देखा।
उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया और उसका कंबल दुरुस्त करके खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों के साथ बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और आंखों में गैर मामूली सख्ती थी। जैसे ही बीजान के कमरे में कदम रखा, वहां बीजान, दादा जान और दूसरे बुजुर्ग गुफ्तगू में मसरूफ थे। जामिन ने सीधा ही बीजान की तरफ देखा। बीजान, आपने अमल से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर के बाकी मुलाजमीन खत्म हो गए थे? उसकी आवाज में गुस्सा था। बीजान जो सुकून से बैठी थी, उसके सवाल और लहजे पर फौरन चौंक गई। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो उठ खड़ी हुई। जामिन, ये किस तरह का लहजा है? क्या तुम हमसे इस तरह बात करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जबान और रवैया दोनों बदल गए हैं। भूल गए हो क्या हम तुम्हारे बड़े हैं? बीजान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी बीवी की है। वो इस घर में जैसे भी आई है, चाहे बनी होकर आई हो या मेरी मर्जी से, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे मुलाजिम जैसा समझकर उसके साथ ज्यादती करे। वो अपने गुस्से को पीता निहायत तहम्मुल से बोला, ये काम मुलाजिम से करवाया जाए, अमल से नहीं। उसने कहा, मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा जान और बाकी बुजुर्ग हैरत से जामिन को देख रहे थे। बीजान का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उनकी खामोशी का गवाह बन चुका था। जामिन ने एक नज़र सब पे डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में टेबल सजाया जा चुका था। बीजान और बाकी घर वाले अपनी नशिस्त संभाल चुके थे, मगर जामिन और अमल गायब थे। बीजान ने इर्द गिर्द देखते हुए मुलाजमा को बुलाया। जामिन कहाँ है? और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना क्यों पसंद नहीं किया? बीजान ने सख्त लहजे में पूछा। बीबी जी, वो अपने कमरे में खाना मांग रहे हैं, मुलाजमा ने अदब से कहा। ये सुनकर बीजान का चेहरा सुर्ख हो गया। जाकर जामिन को कहो कि फौरन नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। हवेली के उसूल इस तरह नहीं बदलते। वो गुस्से से बोली। मुलाजमा सरिलाती हुई फौरन उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के अंदर जामिन और अमल सुकून से बैठे हुए थे। अमल के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी का नजारा था और जामिन उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मुलाजमा ने दस्तक दी। साहब, बीजान ने कहा है कि आप डाइनिंग पर आकर खाना खाएं। उसने कहा, बीजान से जाकर कह दो मैं और अमल डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना हमारे कमरे में ही आना चाहिए। ये फैसला मेरा है और मैं उस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसने संजीदगी से कह के दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजमा सहमे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली गई और बीजान को जाकर ये पैगाम दिया। बीजान, जो पहले ही गुस्से में थी, ये सुनकर मजीद भड़क गईं। उनके चेहरे पे सख्ती और नजरों की चमक खौफनाक हो गई। उन्होंने गुस्से से मेज पे हाथ मारा। ये लड़की जामिन को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सब उसी के असरात हैं। बीजान का दिमाग गुस्से और नफरत से भर चुका था। उनके दिल में अमल के लिए साजिशी ख्यालात जन्म लेने लगे। अमल, जो अपनी मासूमियत में जामिन की मोहब्बत से मुतमईन थी, इस बात से बेखबर थी कि बीजान के दिल में उसके खिलाफ नफरत की एक मजीद आग भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और जामिन मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वो अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसको नया मोबाइल जामिन ने लेके दिया था ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। बीजान, जो पहले ही जामिन की मोहब्बत और अमल की मौजूदगी से कुड़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आई। उन्होंने जब अमल को इस बेफिक्री से मोबाइल पे वक्त गुजारते देखा, तो उनकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो गुस्से से कमरे के अंदर आई और एक झटके में अमल के हाथ से मोबाइल छीन के दीवार पे दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। अमल ने खौफजदा नजरों से बीजान की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सकती, बीजान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से अमल का सर दीवार से जा लगा और वो दर्द से चीख उठी। तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारे उसूलों के खिलाफ जाओ, जामिन को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखो। किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज से दरो दीवार हिल गए थे। अमल, जो दीवार के साथ सहमी खड़ी थी, रोते हुए बामुश्किल बोली, बीजान, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले पहले ही बीजान ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। बीजान ने मुलाजमा को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ।
मुलाज़िमा फ़ौरी तौर पे कमरे में दाखिल हुई और अमल जो खौफ और बेबसी के आलम में थी, उसको घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी थी, "मुझे छोड़ दो प्लीज़।" लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बुज़ुर्ग और हवेली के दीगर अफ़राद मौजूद थे। सबने मुलाज़िमा को अमल को घसीटते हुए आते देखा। बीजान ने फिर से अमल के मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ उनका गुस्से का इजहार मजीद शदीद होता गया। अमल की चीखें और सिसकियां हवेली में गूंजने लगीं। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होठ फट गया था और उसमें से खून रसने लगा था। मीर शाह ने आगे बढ़कर बीजान को रोकना चाहा, मगर दादा जान ने उसके बाजू को थाम लिख कर उसे रोक लिया और फिर बीजान ने इतनी कुव्वत से उसको थप्पड़ मारा जिससे वो लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर पड़ी। उसका नाजुक जिस्म मज़ीद ताब ना ला सका और वो बेहोश हो गई। ऐन उसी वक्त ज़ामिन हवेली में दाखिल हुआ। वो अपनी कोई फ़ाइल लेने आया था, मगर अमल को ज़मीन पे बेहोश होता देखकर, उसके होंठों से रसने वाले खून को देखकर उसके अंदर का तूफ़ान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो भागते हुए अमल के पास आया, उसे बाहों में उठाया। ये सब क्या हो रहा है? किसने किया है ये सब? वो चीखा था, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अमल को उठाकर हवेली से बाहर निकला और फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अमल की बेहोशी और चेहरे पे लगे जख्म उसकी रूह को चीर गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अमल उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ से खून बह रहा था और चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसकी सांसें मामूली सी थी, लेकिन उसकी बेजान बेहोशी जामिन के दिल को जख्मी किए जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वो उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रेचर पे लिटाया और उसका फौरी मुआयना शुरू किया। वो बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। आपकी पेशेंट को शायद काफ़ी शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हमने इन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से इनकी हालत का खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर के अल्फाज रुक गए, जैसे वो मजीद कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, साफ साफ बताएं, जामिन ने बेकरारी से पूछा था। देखिए, इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। एक मासूम कम उम्र बच्ची। डॉक्टर की ये बात सुनकर जामिन की रूह जैसे लरस गई। उसके दिल पर एक बोझ सा पड़ा। वो खुद को इस बात पे मलामत करने लगा कि उसने अमल को हवेली में छोड़ा ही क्यों। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक वजूद और उसके खिलाफ हवेली वालों की सिफाकियत। उसका दिल फटने लगा। अमल को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। वो उसके पास बैठ गया और उसका हाथ थामे अपनी आंखों से बहने वाले आंसू रोकने का नाकाम कोशिश करने लगा। वो उसके चेहरे पे पड़े जख्मों को देख रहा था, जो उसकी बेबसी और दर्द की गवाह थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था कि वो अमल को अब कभी हवेली वापस नहीं लेके जाएगा। वो इस मासूम को इन बेहिस्सों के दरमियान मजीद नहीं छोड़ सकता था। मैं इसका मुहाफिज हूँ, इसका साथी हूँ और इसकी खुशियों का जिम्मेदार भी। मैं कैसे इससे लापरवाही बरत सकता हूँ? वो खुद से बोला था। और उसका दिल ये सोचकर और ज़्यादा दुखने लगा था कि वक्त ने उसे ये सब बता दिया था कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत को मज़ीद किसी के जुल्म का शिकार नहीं होने दे सकता था। जामिन ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरा। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जामिन ने कहा। अमल बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जामिन की बातों में मोहब्बत और खुलूस साफ झलक रहा था। फार्म हाउस की खामोश फिजा में जामिन अमल को लेकर आया था। गाड़ी से उतरते ही अमल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ये जगह एक ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैला सब्जा, एक पुरसुकून सा माहौल और वो खूबसूरत घर जो जामिन ने अमल के लिए चुना था। मगर उसकी आंखों में अभी भी वो चुप थी, जो जामिन को बेचैन कर रही थी। जामिन ने आहिस्ता से उसको सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने अमल को एक आरामदा कुर्सी पर बिठाया और मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगा। अमल की आंखों में थकन और दुख था। जुबान पर खामोशी की मोहर लगी हुई थी। अमल, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे। कोई नहीं होगा जो तुम्हारी इज्जत को रोन सके। हम यहाँ सुकून से रहेंगे, दूर उन सबसे जो तुम्हें रुला देते थे। जामिन ने कहा।
अमल ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। जामिन उसकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। वो उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, वो कहकर किचन की जाने बढ़ गया। मुलाजिम के साथ किचन से खाना लेकर आया तो उसने प्लेट अमल के सामने रखी। फिर अपने हाथों से निवाले बना के उसको खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं? हम वाकई इस घर में रहेंगे? वो चौंक के बोली तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ अमल, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई और नहीं होगा, कोई जुल्म करने वाला, कोई तकलीफ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए। वो मोहब्बत से बोला था। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और बेइख्तियार जामिन के गले लग गई। जामिन ने हल्के से उसे थपथपाया। थोड़ा सा फासला रख के बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वो उसके होंठों का लम्स अपने सीने पे महसूस करते मखमूर लहजे में बोला। क्या मतलब? कौन सी मुश्किल? अमल ने हैरानी से पूछा था। कुछ नहीं, तुम आराम से कमरे में जाकर बैठो, मैं ये बर्तन रख के आता हूँ। जामिन ने उसे शरारती नजरों से देख के कहा। वो हैरानों की तरह उसे देख रही थी। जामिन की मानी खेज बात उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो जामिन के फोन पे कार्टून देखने में मगन थी और जामिन उसके पास बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। अमल की मासूम हंसी और कार्टून के किरदारों की आवाज़ों ने माहौल को हल्का फुल्का बना रखा था। लेकिन अचानक जामिन के फ़ोन की स्क्रीन पे कॉल आने लगी। अमल ने बेध्यानी में फ़ोन उठाया और स्क्रीन पे नज़र डाली। उस पे लिखा हुआ था बीजान। उसके जहन को उलझा गया। उसके फ़ोन पे कॉल आ रही, आपके फ़ोन पे कॉल आ रही है। उसने आहिस्ता से कहकर फ़ोन जामिन को पकड़ाया। उसने फ़ोन अमल के हाथ से ले लिया और कॉल उठाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी अमल को कुछ अजीब सा समझा गई, मगर वो खामोश रही। जामिन ने कमरे से बाहर जाके फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बीजान का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया। कहाँ हो तुम जामिन? 2 दिन हो गए तुमने हवेली में कदम तक नहीं रखा। उनके लहजे में सख्ती और तलखी नुमाया थी। उसने गहरी सांस ली। बीजान, अब मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग अमल को दिल से कबूल नहीं कर लेंगे। वो बेशक वनी होकर उस घर में आई है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। जामिन मीर शाह की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जामिन ने वजाहत की। ये सब सुनकर बीजान का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? जामिन ने बीच में ही बीजान की बात काट दी। उसकी आवाज में गैर मामूली ठहराव और सख्ती थी। बीजान, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों से अमल के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर उसने बिना किसी तवक्कुफ के फोन बंद कर दिया। बीजान दूसरी तरफ सुलग के रह गई। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले असरात आसार थे। जामिन ने फोन बंद करके एक लम्हे को खुद को संभाला। गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही जामिन ने अमल की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पे कार्टून देखने में मगन थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। चलो अमल, अब बहुत कार्टून देख लिए, अब सो जाओ। वो नरमी से बोलता उसके पास आया। नहीं, मुझे अभी और कार्टून देखने हैं, उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा। उसकी जिद पर वो सर पकड़ के रह गया। उसने हमेशा बाशऊर, अपनी हम उम्र और समझदार बीवी का ख्वाब देखा था, जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। मगर हकीकत ये थी कि उसे ये मासूम और जिद्दी सी 15 साल लड़की मिली थी, जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। वो उस मासूम सी लड़की से मोहब्बत करने लगा था। अपनी सोचों को झटकता वो भी बैठ गया। ठीक है, देख लो कार्टून। उसने मोबाइल में उसके लिए नए कार्टून लगा दिए और फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोनों अपने काम में मशगूल थे कि अचानक लाइट चली गई। अमल के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। वो एकदम से उछलकर जामिन की गोद में आ बैठी। जामिन इस गैर मुतवक्के हरकत पे बौखला गया। ये क्या कर रही हो अमल? कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, आ जाएगी लाइट अभी। वो संभल के बोला था। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास ही रहना है। वो खौफ से कांपते हुए बोली थी। जामिन ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की ताकि कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो सके। अमल का चेहरा उसके कंधों के करीब था और उसके होंठ भी इख्तियार अमल की गर्दन से मस हो गए।
اس کی قربت نے ضامن کے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ وہ بامشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمل کی مزید نزدیکی نے اس کو بے چین کر دیا۔ عمل پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، سائڈ پہ ہو کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پہ تھا۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کی گود میں ہی رہنا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ ضامن نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ اس کا دل بہکنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات پہ قابو پانا ضروری ہے۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی تھی، اس کی شدت کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی۔ ضامن نے سکون کی سانس لی۔ یار اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پہ بیٹھ گئی، مگر ضامن کی حالت بے حد نروس تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کے واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پہ اسکرین پہ تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دادا جان اور میر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کے ضامن چونک گیا اور فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بابا جان، دادا جان، آپ یہاں پلیز بیٹھیں۔ وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ضامن نے ان کے لیے پانی منگوا کر خود بھی قریب ہی ان کے بیٹھ گیا۔ میر شاہ کی گہری نظریں اور دادا جان کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ ضامن، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو؟ میر شاہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بابا جان، وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں، وہ اب میری بیوی ہے، میری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ ونی کے طور پر آئی ہے اور اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کیا؟ دادا جان نے اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا۔ ضامن کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا۔ دادا جان، میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے، ہر بات، ہر زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ ونی کی رسم کے خلاف تھا۔ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح مجھ سے 15 سال چھوٹی معصوم لڑکی سے کروا دیا۔ اب جب یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے تو اب میرے فیصلوں کے ساتھ آپ لوگوں کو چلنا پڑے گا، ورنہ یہ بزنس، یہ سب کچھ بھی میں چھوڑ دوں گا۔ اس کے سخت اور کھدرے لہجے نے آفس کی فضا میں خاموشی بھر دی۔ وہ ضامن جو ہمیشہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھری کھری سنا رہا تھا۔ دادا جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ضامن ہے۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلے اس طرح نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی ہے، لیکن عمل اور تم حویلی واپس آ جاؤ۔ وہ تحمل سے بولے تھے۔ نہیں دادا جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف 15 سال کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا، اسے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ کم از کم اس کے بڑے ہونے کا تو انتظار کر لیتے، پھر نفرت کر لیتے۔ ابھی وہ شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی، نفرتوں کا مطلب بھی نہیں جانتی، اور آپ سب نے اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بی جان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اس پر ظلم کرتی نہیں، مگر اب نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ شدت تھی جو دادا جان اور میر شاہ کو خاموش کر گئی۔ بیٹا، ہم تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، ہم کوئی حل نکالیں گے، مگر تم حویلی واپس آ جاؤ۔ میر شاہ نے بھی اس کو سمجھانا چاہا۔ جب آپ لوگ کوئی حل نکال لیں گے اور عمل کے ساتھ انصاف کریں گے، تب تب میں واپس آ جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ دادا جان اور میر شاہ آہستہ قدموں سے آفس سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کرسی پہ گر گیا۔ اس کے دل میں دکھ اور غصہ دونوں موجزن تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس معصوم کے حق کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا اور جب دروازہ کھول کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر عمل پہ پڑی، جو نیلے رنگ کی ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ساڑی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ چاپ کھڑا رہ گیا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین خواب آ گیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب پہنچا اور بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا، یہ ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے تو لے کے نہیں دی تمہیں۔ ضامن نے کہا، ملازمہ سکینہ آنٹی کی بیٹی ہے نا، وہ لے کے آئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی پہن کے دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آئی۔
اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ پھر اچانک عمل کی ساڑی جو ٹھیک سے بندھی نہیں تھی کھل کے زمین پہ گر گئی۔ عمل کے نہ تمام نشیب و فراز زامن کے سامنے واضح ہو گئے۔ اس کا نازک نیم برہنہ وجود زامن کے سامنے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو کے ساڑی کو اٹھانے لگی۔ مجھے ساڑی ٹھیک سے پہننی نہیں آتی، پلیز میری مدد کر دینا زامن، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں کیسے مدد کروں، مجھے نہیں آتی، وہ اس کو بچوں کی طرح پچکارا تھا۔ تو پھر آپ فون سے دیکھ کے پہنا دیں، مجھے نہیں پہننی آ رہی، اس نے ضد کی۔ زامن اس کی ضد کے آگے ہار کر آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے رکو۔ وہ اپنا فون نکال کے ساڑی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگا۔ زامن کے دل میں ایک جذباتی طوفان مچ رہا تھا۔ عمل کی قربت میں اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر جانتا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس کی شدت کو نہیں سہ پائے گی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ساڑی کو درست طریقے سے اس کو پہنا دیا۔ وہ قیامت سی لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ ایک مکمل حسین خواب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ آخر اتنا روپ وہ کہاں سے لائی تھی؟ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ پلو لہرا کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ بے اختیار بولتا اس کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا۔ وہ جب بے حد خوش نظر آ رہی تھی، آگے بڑھ کر زامن کی طرح اس کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اس کی جسارت پر۔ اس کو اچانک ایک شرارت سوجی۔ وہ ایک دم شدت سے عمل کی طرف جھک گیا اور اس کے نازک گلابی لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر چوسنے لگا۔ چلو اب ایسے بھی کرو، وہ مسکراہٹ دبا کے بولا۔ نہیں، ایسے درد ہوا مجھے، وہ معصومیت سے منہ بنا کر اپنے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر اس کو خود میں بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اس کی معصومیت اور اس کا بچپن ہی اس کا سب سے بڑا جمال تھا۔ بی جان کے کمرے کا ماحول خاصا سرد اور دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ دادا جان، میر شاہ اور حویلی کے باقی بزرگ اپنی جگہ پہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بی جان کے کمرے میں الجھن، غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ضامن اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی ضامن ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا، اور اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کے آفس تک گئے لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے؟ کیا بات ہے اس نے جو اس حد تک بدل گیا ہے وہ؟ بی جان نے مایوسی سے کہا۔ بی جان جو بھی ہے، ہمیں اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم عمل کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کرتے وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ میر شاہ نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ بی جان نے اپنے چہرے پہ الجھن کا تاثر مزید گہرا کر لیا۔ ان کی پیشانی کی شکنیں واضح ہو گئیں۔ انہوں نے گہری اور طویل سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹانگ بھر کی لڑکی کے سامنے جھک جائیں جو ونی کی رسم کے تحت اس گھر میں آئی تھی، جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا خون بہایا۔ بی جان جو وہ جوان خون ہے، اگر وہ ہم سے اور بدگمان ہو گیا تو اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں وہ ہمارے خاندان کا واحد چشم چراغ ہے۔ اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسل کا تسلسل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ دادا جان جو اب تک خاموش تھے اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے سر کو اٹھا کے دھیمی آواز میں بولے۔ میر شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ضامن کو کھونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں اس کی بات ماننی ہی ہوگی ورنہ معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ بی جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جیسے اپنے اندر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وہی سختی تھی لیکن وہ اس وقت حالات کے آگے جھکنے پہ نظر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے، ضامن کو پیغام بھیج دو، ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عمل کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے اس حویلی کی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بیت گیا انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا۔ عمل جو پہلے ایک معصوم اور ضدی لڑکی تھی، ضامن کے ساتھ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی تھی۔ ضامن کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کی جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں بیڈ پہ ایک ساتھ لیٹے تھے،
जामिन ने उसे नरमी से गले लगाया। वो उसके सीने पे सर रखे अपनी बातों में मसरूफ थी। उसकी मासूमियत हमेशा जामिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती थी। जामिन, मुझे बेबी चाहिए। वो अचानक सर उठा के बोली थी। बेबी? क्यों? क्यों चाहिए तुम्हें? जामिन ने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी बात को दोहराते हुए कहा, सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका भी एक बेबी है। वो इतना छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए। वो फौरन से बोली। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी ख्वाहिश पे वो हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में शरारत भी शामिल हो गई थी। हाँ, अमन ने फौरन सर हिला के कहा। चलो फिर बेबी लाने के लिए जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। जामिन ने नरमी से उसके बालों को छुआ था। ठीक है, वो मासूमियत से बोली तो वो गहरा मुस्कुराया। चलो फिर मेरे करीब आओ, जामिन ने कहा। अमन ने शर्माते हुए जामिन के चेहरे की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से वो जामिन के करीब हुई। जामिन ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इन दूरियों को खत्म कर दो अमल, वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन जामिन की मोहब्बत और खुलूस ने उसे एतमाद बख्शा। वो आहिस्ता से जामिन के करीब होकर तमाम दूरियों को मिटा गई। जामिन की धड़कनें तेज हो गई थीं। अमल के करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। वो बेख्तियार होते अमल की सुराहीदार गर्दन की तरफ झुका। अमन ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही जामिन की शिद्दत बढ़ने लगी, वो वो सिसकने लगी। जामिन की कुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। जामिन की कुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो अचानक रोने लगी। उसके आंसू जामिन के दिल पे गिरे, जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वो फौरन पीछे हट गया और खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से अमल को गले लगाया और उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूंगा, रोना बंद करो अमल। वो उसको सीने से लगाए नरमी से बोला था। जामिन, मुझे दर्द हुआ था। वो हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। जामिन ने उसके माथे पे बोसा दिया और अपनी आवाज को भरपूर नरमी देते हुए कहा। वो उसके साथ लिपट गई। जामिन ने उसे मजीद संभाल के अपने करीब कर लिया और उसे सुकून देने के लिए उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखों के आंसू थम गए, लेकिन जामिन की बेचैनी बढ़ गई। वो अपने मजरूह जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो उस मासूम की कुर्बत में मचलने लगते थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन के कमरे में दाखिल हो रही थी। अमल भी करीब ही बेड पे बैठी थी। उसकी नजरें जामिन पे जमी थीं, जो ब्लैक शर्ट पहनते हुए खासा मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देख के रुक गया। जी बाबा जान, खैरियत? उसने फोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मीर शाह की गहरी और पुरसुकून आवाज सुनाई दी। जामिन बेटा, हम सब ने फैसला कर लिया है। तुम्हें और अमल को अब किसी किस्म की जबरदस्ती या ज्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजान ने अमल को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर जामिन का हाथ लम्हा भर के लिए रुक गए थे। ये सब अचानक कैसे? बीजान कैसे मान गई? वो हैरान हुआ था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी जिद और अमल के लिए तुम्हारी मोहब्बत को देख के हुआ। हमें एहसास हो गया है कि अमल हमारी बहू है और उसे वैसे ही मुकाम मिलना चाहिए। अब कोई मसला नहीं होगा, मीर शाह ने कहा। जामिन ने गहरी सांस ली और कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में अमल के साथ हवेली वापस आता हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला था। यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन बंद करते हुए जामिन ने कुछ सोचते हुए एक नजर अमल पे डाली, जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फोन था। वो चाहते हैं कि हम हवेली वापस चलें। सब ने हमें अपना लिया है, जामिन ने कहा। सच? मुझे कबूल कर लिया सबने? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा। हाँ, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है अमल। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वो मुस्कुरा के बोला था। अमल ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई थी। जामिन ने नरमी से उसके करीब जाकर उसको सीने से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, हम जल्द वापस चलेंगे। उसने खामोशी से अस्वात में सर हिला दिया और वो अपने काम की तैयारी में मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पे अब सुकून और खुशी के तासुरात थे, और वो भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था। हवेली के दरवाजे पे गहमा गहमी थी।
मुलाजमीन हाथों में गुलाब के फूल लिए एक कतार में खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों की माला से सजाया गया था। दरवाजे के करीब दादा जान, बी जान, मीर शाह और चची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थीं। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद जामिन और अमल वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों का बायस था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे आके रुकी, जामिन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो सियाह शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। अमल भी आहिस्ता से बाहर निकली, आसमानी रंग के लिबास में बच्चों जैसी मासूमियत लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से मअत्तर हो गया। दादा जान ने आगे बढ़कर जामिन को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फख्र का मिला जुला तासुर था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। आपकी दुआ है दादा जान। जामिन ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। इसके बाद बी जान ने आगे बढ़कर उन दोनों को दुआ देते प्यार दिया। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए जामिन को गले लगा लिया था। अमल के चेहरे पे खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमाया थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे। हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का माहौल था। अमल जामिन के साथ साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती और कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों को। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये खुशियाँ हमेशा कायम रहें। जल्द ही सब दस्तरखान पे जमा हो गए। खाने की मेज रंग बिरंगी खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के साथ खाना खाया। अमल हर किसी के साथ पूरे एतमाद से बात कर रही थी और जामिन उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। खाना पुरसुकून माहौल में खाया गया था। उनको हवेली आए काफी महीने हो गए थे। सबका रवैया अमल के साथ बदल गया था। वो तितली की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिरती थी, मगर कोई रोक टोक न थी। बीजान भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने होनहार पोते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थी। वो अभी ऑफिस से हवेली लौटा था कि दादा जान ने उसको बुलाया। वो खामोशी से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक संजीदगी के साथ नर्म सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा, बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। वो उनके करीब सोफे पे बैठ गया और एहतराम से उनकी तरफ देखने लगा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया। जामिन, तुम जानते हो कि ये खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि ये विरासत तुम्हारी नस्ल तक जाए। तुम हमें पोते की खुशी दे दो। वो बिना किसी तमहीद के बोले थे। जामिन उनकी आखिरी बात पे चौंक गया। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो। अमल के साथ तुम्हारी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि अब हमारी अगली नस्ल की बुनियाद रखी जाए। उसने दादा जान की बात पर गहरी सांस ली। दादा जान, अमल अभी बहुत छोटी है। वो सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूँ वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। ये कुदरती बात है। अमल तुम्हारे साथ बहुत अटैच है और अगर तुम उससे मोहब्बत और नरमी से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को मान लेगी। हमें यकीन है कि वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखेगी। वो तो जैसे हथेली पे सरसों जमाए बैठे थे। वो बेबस हुआ। उसका चेहरा गहरे इस्तराब का शिकार लग रहा था। दादा जान, मैं अमल को समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुद को कुछ वक्त चाहिए। मैं इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसका दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। वो तहम्मुल से अपने दिल की बात कह गया। बेटा, हमें मालूम है कि तुम उसे कितना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, नस्ल का तसलसल ज़रूरी है। ये हवेली, ये ज़मीन, ये विरासत सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का हक तब अदा होगा जब हमारी नस्ल का वजूद होगा। दादा जान ने नरम लहजे में उसे समझाया था। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो अंदर ही अंदर शशो पंच में मुब्तला था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे संभाले। अमल की मासूमियत और कम उम्री उसके दिल में बार बार आ रही थी और वो दादा जान की ख्वाहिश के आगे बेबस भी महसूस कर रहा था। ठीक है दादा जान, उसने बिलाखिर हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उसने अमल के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। वो उसकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा फैसला उसकी मासूम जिंदगी पर असर डाले। लेकिन दादा जान की ख्वाहिश और खानदान की उम्मीदों के आगे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो परेशान सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ।
उसके कदमों में वो ठहराव ना था जो आम तौर पे उसकी शख्सियत का हिस्सा था। अमल जो बेड पे बैठकर उसके मोबाइल पे कार्टून देखने में मगन थी, उसको देखते ही मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं आप? उसने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। उसने अमल की तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया। परेशान क्यों है, मुझे बताए ना, शायद मैं कुछ कर सकूं। अमल ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और करीब आकर उसके हाथ थाम लिए। वो मुस्कुरा के उसके नन्हे हाथों को देखने लगा जिसमें उसके हाथ थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी बात पर अमल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ, चाहिए ना, कब मिलेगा मुझे बेबी? वो अपनी असली मासूमियत से बोली। अमल, तुम्हें मालूम है कि बेबी कैसे आता है? जामिन ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ संजीदगी से देख के कहा। अमल ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, आप ही बेबी ले आए, उसने कहा। जामिन हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में एक बेचैनी सी छुपी थी। अमल, बेबी लड़कियां पैदा करती हैं, लेके नहीं आते कहीं से। उसकी बात पर अमल ने हैरत से आंखें फैलाईं। क्या वाकई? मुझे तो ये भी नहीं पता था। लेकिन मैं क्यों पैदा करूं बेबी? आप पैदा करें ना, अमल ने कहा। जामिन ने उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहकहा लगाया, लेकिन जल्द ही संजीदा हो गया। अमल, बीवी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें इन सबके लिए मजबूर नहीं करना चाहता, उसने कहा। अमल ने गर्दन झुका के सोचने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन ये कैसे होगा? जामिन ने उसके सवाल पे कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। ये बातें तुम्हारे लिए समझना भी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझने के काबिल हो जाओगी, तभी हम इस बारे में सोचेंगे। वो आहिस्ता से उसको सीने से लगा के बोला था। अमल ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है जामिन, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, वो बोली। जामिन ने मुस्कुरा के उसके माथे पे नरमी से बोसा दिया और खुद से वादा किया कि वो उसे कभी किसी दबाव या तकलीफ में मुब्तला नहीं होने देगा। ये सुन के उसकी मासूमियत और उसकी भरोसेमंद मुस्कुराहट ने जामिन के दिल को सुकून बख्शा, मगर अंदर ही अंदर वो दादा जान की ख्वाहिश के बोझ तले दब के रह गया था। 3 साल बाद आज उसकी 18वीं सालगिरह थी। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। इन 3 साल के अरसे में जामिन शाह की मोहब्बत ने उसे एक हसीन दोशीज़ा बना के उभारा था। वो याकूती हुस्न की मालिक थी, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। वो इस कदर हसीन और जमील थी, मगर 33 साल का होकर भी जामिन शाह अब तक अधूरा था। उसके बड़े होने की बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था और अपने मजरू जज्बात को 3 साल से सुलाता आ रहा था। उसने दादा जान और बी जान को भी अपने साथ 3 साल के इंतजार की सूली पे लटका कर रखा हुआ था, जो उसके पोते होने की ख्वाहिशमंद रखते थे, मगर उसके कहे के मुताबिक अमल के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। रात सालगिरह की तकरीब के बाद वो थकी हुई वार्डरोब से ड्रेस चेंज करने के लिए ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पे लोशन लगा रही थी। जामिन अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो दोस्तों में बैठा हुआ था। अभी उसको कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने मुड़कर देखा तो जामिन उसको देख के मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया। मेरा 3 साल का सब्र खत्म हुआ, अब तुम नहीं बचोगी। तुम्हें बेबी चाहिए था ना, अब दूंगा मैं तुम्हें बेबी, और वो भी ट्विंस। वो तेज सांसों के साथ कहते खींच के उसको अपने साथ लगा गया और वो शर्मा की निगाहें झुका गई। जानती थी उसने अपने जामिन शाह को बहुत इंतजार करवाया था। जामिन ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उठाकर बेड की जानिब ले आया। वो शर्म से सुर्ख पड़ती आंखें बंद कर गई। जामिन ने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑफ की और फिर उसकी तरफ बढ़ते उस पे झुक गया। उसकी कुर्बत पाते ही जामिन की 3 सालों की तिश्नगी और प्यास मिटी थी। वो दोनों आज की रात मुकम्मल एक दूसरे को पा चुके थे। चांद उनके मिलन की रात पर मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था।